یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 23 مارچ 2025 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون مادہ سنہری متن کرنتھیوں۔ مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں۔ جوابی مطالعہ۔ امثال۔ دل کی تدبیریں انسان سے ہیں، لیکن زبان کا جواب خداوند کی طرف سے ہے۔ انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں پاک ہیں، لیکن خداوند روحوں کو جانچتا ہے۔ اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے تو تیرے سب ارادے قائم رہیں گے۔ آدمی کا دل اپنی راہ ٹھہراتا ہے، پر خداوند اس کے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ٹھیک ترازو اور پلڑے خداوند کے ہیں۔ حکمت کا حصول سونے سے بہت بہتر ہے، اور فہم کا حصول چاندی سے بہت پسندیدہ ہے۔ جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا، اور جس کا توکل خداوند پر ہے مبارک ہے۔ دانا دل ہوشیار کہلائے گا، اور شیریں زبان سے علم کی فراوانی ہوتی ہے۔ عقل مند کے لیے عقل حیات کا چشمہ ہے۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ اے خداوند تو صادق ہے اور تیرے احکام برحق ہیں۔ تیرا کلام بالکل خالص ہے، اس لیے تیرے بندے کو اس سے محبت ہے۔ تیری شریعت برحق ہے، تیرے فرمان میری خوشنودی ہے۔ تیری شہادتیں ہمیشہ راست ہیں۔ مجھے فہم عطا کر تو میں زندہ رہوں گا۔ متی۔ اس وقت فریسیوں اور فقیوں نے یروشلم سے یسوع کے پاس آ کر کہا کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو؟ پھر اس نے لوگوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، سنو اور سمجھو، جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، مگر جو منہ سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا، جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا جڑ سے اکھاڑا جائے گا۔ پطرس نے جواب میں اس سے کہا، یہ تمثیل ہمیں سمجھا دے۔ اس نے کہا، کیا تم بھی اب تک بے سمجھ ہو؟ کیا نہیں سمجھتے کہ جو کچھ منہ میں جاتا ہے وہ پیٹ میں پڑتا ہے اور مزبلہ میں پھینکا جاتا ہے؟ مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں، اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل سے ہی نکلتی ہیں۔ یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقہ کو روانہ ہوا، اور دیکھو ایک کینانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد، مجھ پر رحم کر، ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا، اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ اس نے کہا، ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ اور ایک بڑی بھیڑ لنگڑوں، گونگوں، اندھوں، ٹنڈوں اور بہت سے اور بیماروں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آئی، اور ان کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا،
और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। चुनाचे जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे दुरुस्त होते और लंगड़े चलते फिरते और अंधे देखते हैं, तो ताज्जुब किया और इसराइल के खुदा की तमजीद की। रोमियो, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूद जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। करंथियों, चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदमजाद नफ्स बना, पिछला आदमी जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी हैं, और जैसा वो आसमानी था वैसा ही वो आसमानी भी है। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। ऐ भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते, और ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे, मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में, पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा। क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। बस ऐ मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो, और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो। इमसाल, ऐ मेरे बेटे, मेरी हिकमत पर तवज्जो कर, मेरे फहम पर कान लगा। दानियल, यहाँ पर ये अमर तमाम हुआ। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। सवाल, हस्ती का साइंसी बयान क्या है? जवाब, मादे में कोई जिंदगी, सच्चाई, जहानत और ना ही मवाद पाया जाता है। क्योंकि खुदा हाकिम कुल है, इसलिए सब कुछ लामुतनाही अक्ल और उसका लामुतनाही इजहार है। रूह लाफानी सच्चाई है और मादा फानी गलती है। रूह अब्दी और हकीकी है, मादा गैर हकीकी और आर्जी है। रूह खुदा है और इंसान उसकी सूरत और शबी, इसलिए इंसान मादी नहीं बल्कि वो रूहानी है। क्या रूह मादे का तख्लीक़कार या वसीला है? साइंस रूह में ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं करती जिससे मादे को खल्क किया जा सकता हो। इलाही माबादुल तिबियात मादे की वजाहत करती है। रूह इलाही साइंस का तस्लीम शुदा वाहिद मवाद और शाऊर है। मादी हवास इसकी मुखालफत करते हैं, मगर यहाँ कोई मादी हवास है ही नहीं, क्योंकि मादे में अकल नहीं है। रूह में कोई मादा नहीं है, हत्ता कि जैसे सच्चाई में कोई गलती नहीं और अच्छाई में कोई बदी नहीं है। ये एक झूठा मफरूजा तसव्वुर है कि यहाँ कोई मादी मवाद रूह का मुखालिफ है। रूह, खुदा, लामहदूद सब कुछ है। रूह का कोई मुखालिफ नहीं हो सकता। बशर के झूठे अकायद में से एक ये है कि मादा असली है या इसमें एहसास और जिंदगी है, और ये अकीदा सिर्फ एक फर्जी फानी शाऊर में मौजूद होता है।
लिहाजा जब हम रूह और सच्चाई तक रसाई पाते हैं, हम मादे का शाऊर खो देते हैं। इस बात के एतराफ़ के लिए कि फ़ानी मवाद हो सकता है, एक और एतराफ़ की ज़रूरत है, यानी कि रूह लामहदूद नहीं और कि मादा खुद तख्लीकी, खुद मौजूद और अबदी है। वो सब कुछ जिसके लिए हम गुनाह, बीमारी और मौत की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, फ़ानी यकीन है। हम मादे की तशरीह बतौर गलती करते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी, मवाद और शऊर के उलट है। अगर रूह हकीकी और अबदी है, तो मादा अपनी फ़ानियत के हमरा हकीकी नहीं हो सकता। हमारी नज़र में क्या चीज़ मवाद होनी चाहिए? गलती, तब्दील होने वाला और फ़ना होने वाला, काबिल तगय्युर और फ़ानी, या गलती से मुबर्रा, नाकाबिल तगय्युर और लाफ़ानी। फ़ानी इंसान फ़ानी नहीं रहेगा जब वो ये जान लेता है कि मादा कभी वजूद बरकरार नहीं रख सकता और खुदा को तबाह नहीं कर सकता, जो इंसान की ज़िंदगी है। जब ये समझ लिया जाता है, तो इंसान मज़ीद रूहानी हो जाएगा और जान लेगा कि कुछ भी हड़प करने के लिए नहीं है, चूँकि रूह खुदा ही सब कुछ है। खुदा इंसान के लिए उसके ईमान से ज़्यादा है, और जितना हम मादे को या उसके कवानीन को कम तस्लीम करते हैं, उतना ही ज़्यादा हम लाफानियत की मलकियत रखते हैं। जब मादे पर अक़ीदे को फ़तह कर लिया जाता है, तो शऊर बेहतर बदन तश्कील देता है। रूहानी फ़हम के वसीले मादी अक़ीदे की तसहीह करें, तो आपकी रूह आपको नया बनाएगी। माँ सिवाय खुदा को रंजीदा करने के आप कभी खौफज़दा नहीं होंगे, और आप ये कभी यकीन नहीं रखेंगे कि दिल या आपके बदन का कोई भी हिस्सा आपको तबाह कर सकता है। अगर हम सही तौर पर जिस्म के साथ हैं और क़ादिर मुतलक को बतौर जिस्म, मादी शख्स देखते हैं जिसके हम कान हासिल करेंगे, तो हम रूह के इजहार के लिए बदन से जुदा और खुदा में मौजूद नहीं हैं। हम दो मालिकों की गुलामी नहीं कर सकते। खुदावंद के वतन में रहना महज जज्बाती खुशी या ईमान रखना नहीं, बल्कि ज़िंदगी का असल इजहार और समझ रखना है, जैसा कि क्रिश्चियन साइंस में जाहिर किया गया है। खुदावंद के वतन में रहना, खुदा की शरीयत का फरमाबरदार होना, मुकम्मल तौर पर इलाही मोहब्बत की, रूह की, ना कि मादे की हुक्मरानी में रहना है। एक लम्हे के लिए होश करें कि ज़िंदगी और जहानत खालिस्तन रूहानी है, ना मादे में, ना मादे से, और फिर बदन को कोई शिकायत नहीं होगी। अगर बीमारी पर एक अक़ीदे की बदौलत तकलीफ में है, तो अचानक आप खुद को ठीक पाएंगे। जब जिस्म पर रूहानी ज़िंदगी, सच्चाई और मोहब्बत का पहरा होगा, तो दुख खुशी में बदल जाएंगे। हस्ती की हकीकत और तरतीब को उसकी साइंस में थामने के लिए वो सब कुछ हकीकी है, उसके इलाही ज़ुहूर के तौर पर आपको खुदा का तसव्वुर करने की इब्तिदा करनी चाहिए। रूह, ज़िंदगी, सच्चाई, मोहब्बत यकसानियत में जुड़ जाते हैं, और ये सब खुदा के रूहानी नाम हैं। सब मवाद, जहानत, हिकमत, हस्ती, लाफानियत, वजह और असर खुदा से ताल्लुक़ रखते हैं। ये उसकी खसूसियात हैं, यानी लामुतनाही इलाही असूल, मोहब्बत के अब्दी इजहार। कोई हिकमत अक्लमंद नहीं सिवाय उसकी, कोई सच्चाई सच नहीं, कोई मोहब्बत प्यारी नहीं, कोई ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं माँ सिवाय इलाही के, कोई अच्छाई नहीं माँ सिवाय उसके जो खुदा बख्शता है। जैसा कि रूहानी समझ पर जाहिर हुआ है, इलाही मबादुल तिब्बियत वाज़ह तौर पर दिखाता है कि सब कुछ अक्ल ही है, और ये अक्ल खुदा, क़ादिर मुतलक, हमाजाई, अलामुल ग़यूब है, यानी कि सभी ताकत वाला, हर जगह मौजूद और सभी साइंस पर कादिर है। लिहाजा हकीकत में सब कुछ अक्ल का इजहार है। सच रूहानी तौर पर इदराक पाते हुए साइंसी तौर पर समझा जाता है। ये गलती को बाहर निकालता और बीमार को शिफा देता है। सच्चाई इंसान नहीं है, और ये मादे का कानून नहीं है, क्योंकि मादा कानून देने वाला नहीं है। साइंस इलाही अक्ल का ज़ुहूर है, और सिर्फ यही खुदा की सही तशरीह करने के काबिल है। उसका असल रूहानी है, ना कि मादी। ये इलाही इजहार ख्याल है, यानी तसल्ली देने वाला, जो सच्चाई की जानब गामजन करता है।
हम सिर्फ तभी क्रिश्चियन साइंसदान हैं जब हम उस पर से अपना इन्हिसार तर्क करते हैं जो झूठा और सच्चाई को निगलने वाला हो। जब तक हम मसीह के लिए सब कुछ तर्क नहीं करते, तब तक हम मसीही साइंसदान नहीं बनते। इंसानी आरा रूहानी नहीं होती, वो कान के सुनने से आती हैं, यानी जिस्म से आती हैं, ना कि असूल से, और फानी से आती हैं, ना कि लाफानी से। रूह खुदा से अलग नहीं है, रूह खुदा है। सरगर्दा ताकत मादी यकीन है, अंधी कुव्वत का दिया हुआ गलत नाम, हिकमत की बजाय मर्जी, लाफानी की बजाय फानी अकल की पैदावार है। साइंस में खुदा के मुखालिफ आप कोई कुव्वत नहीं रख सकते, और जिस्मानी एहसासात को उनकी झूठी गवाही से दस्तबरदार होना पड़ता है। नेकी के लिए आपके रसूख का इन्हिसार इस वजन पर है जो आप दुरुस्त स्केल पर डालते हैं। इलाही मबादुल तिब्बियात के फहम में हम हमारे मालिक के नमूने की पैरवी करते हुए मोहब्बत और सच्चाई के नक्शे कदम पर चलते हैं। मसीहत हकीकी शिफा की बुनियाद है। बेलौस मोहब्बत के मामले में इंसानी सोच जो कुछ भी अपनाती है वो बराह रास्त इलाही कुव्वत पा लेती है। अब मैं मेरी बेकर एडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोजाना के 3 फराइज पढ़ूंगा। रोजमर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फर्ज है कि हर रोज ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, जिंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है, और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अराकीन को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मुज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।